Today we'll talk about the structural changes in chromosomes. What are the various changes which can occur in the structure of the chromosome? These structural changes in chromosomes are changes in the structure of the chromosome. These are also called as chromosomal aberrations. So these are also called as chromosomal aberrations. And these structural changes in chromosomes or chromosomal aberrations, these are simply there are changes or alterations in the structure of the chromosome. So in this case there are change or alteration. We can say that there is change or alteration in the structure of the chromosome. Structural organization of the chromosome gets changes. A change or alteration in structural organization of chromosome. जो क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है, इनमें जो स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रोमोसोम, उसमें ऑल्ट्रेशन आती है, उसमें चेंज आ जाती है. एंड दीज स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम्स, or we say that chromosomal aberration, they are also a type of mutation. Here we use the term chromosomal mutations. So these chromosomal aberrations are basically the chromosomal mutations. And these chromosomal mutations are different from that of the gene mutation or point mutation, in that in case of point mutation, these are different from that of the point mutation, what are called as gene mutation. In point mutation, what are also called as gene mutations, there is change in the base sequence of the DNA. There is change, जो there alteration आ जाती है या change आ जाता है in change in base sequence of DNA. Whereas in case of chromosomal mutation, these chromosomal aberrations, these are also known as chromosomal mutations. There is change in the number of the genes in a chromosome. There is change in the arrangement of the genes in the chromosome. जो genes होते हैं उनका arrangement change हो जाता है in the chromosome, या उनका number change हो जाता है in chromosome. So we can say that there is change in chromosomal mutation, also known as chromosomal aberration. There is change in number and arrangement of genes in the chromosome, and arrangement of genes in chromosome. So what are chromosomal structural changes in chromosomes? They are also known as chromosomal, इनको हम chromosomal aberrations भी बोलते हैं. तो chromosomal aberrations क्या होते हैं? Chromosomal aberrations जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑल्ट्रेशन आ जाएगी तो हम उसको क्रोमोसोमल एब्रेशन बोलते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द क्रोमोसोम्स. जिस तरह हमारे पास अगर चेंज आई जाएगी इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, वो भी क्रोमोसोमल म्यूटेशन. देयर इज न्यूमेरिकल चेंजेस इन द क्रोमोसोम. तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम का वो ऑल्टर हो जाता है, वो चेंज हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम या क्रोमोसोमल एब्रेशंस. अब क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है, जिसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन का भी नाम दे सकते हैं, तो ये डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन या फ्रॉम दैट ऑफ द जीन म्यूटेशन. इन पॉइंट म्यूटेशन, व्हाट इज आल्सो कॉल्ड जीन म्यूटेशन, इसमें जो बेस सीक्वेंस ऑफ द जीन्स वो ऑल्टर हो जाते हैं इन पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन. Whereas in case of this chromosomal mutation, जिसको हम chromosomal aberration भी बोलते हैं, वहाँ पर चेंज आ जाता है इन द नंबर ऑफ द जीन्स, या हम कहेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स चेंज हो जाता है इन द chromosome. So we can say that there is a change in the number of genes and arrangement of genes in the chromosome. अब chromosomal aberration जो है ये दो टाइप्स के हैं. We have two types of chromosomal aberrations. तो chromosomal aberration जो है, this is of two types. एक तो है इंट्रा क्रोमोसोमल एब्रेशन. इंट्रा क्रोमोसोमल एब्रेशन,
दूसरा है इंटर क्रोमोसोमल एब्रेशन। Chromosomal aberration is of two types. One is intrachromosomal aberration and another is interchromosomal aberration. तो intrachromosomal aberration जो है इसमें it involves change in a single chromosome. इसमें only one chromosome में change आ जाती है, one chromosome. That means इसमें एक ही क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो जाता है, इंट्राक्रोमोसोमल एब्रेशन, उसी में चेंज आ जाती है, तो इसको हम इंट्राक्रोमोसोमल एब्रेशन बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें दो आते हैं, वन इज डिलीशन, दूसरा है इन्वर्शन। और इंटरक्रोमोसोमल एब्रेशन जो है इसमें टू क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्वड, दो क्रोमोसोम्स में चेंज आ जाती है। सो टू क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्वड, टू क्रोमोसोम्स इन्वॉल्वड। इसमें दो क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं इंटरक्रोमोसोमल एब्रेशन में। इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक है डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन, डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन। One is duplication, another is translocation. We will discuss them one by one. So we have chromosomal aberrations. These are of two types. One is, एक तो है intrachromosomal aberration, दूसरा है interchromosomal aberration. अब intrachromosomal aberration जो है इसमें एक ही क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है। That means एक ही क्रोमोसोम में चेंज आ जाती है। One chromosome gets altered or one chromosome gets changed. इसमें deletion आता है और inversion. And then we have interchromosomal aberration जिसमें दो क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो है इसमें डुप्लीकेशन आता है और ट्रांसलोकेशन। we will discuss them one by one. One is deletion. This is first one, deletion. Deletion को हम this deletion is also known as or deficiency. Deletion is simply, इसमें in deletion there is the loss of the genetic material. Genetic material जो है lost होता है in deletion. Deletion वो structural change आ जाता है क्रोमोसोम में when there is the loss of the genes, when there is the loss of the genetic material. So in deletion there is loss of genetic material. Deletion में loss of genetic material हो जाता है from chromosome. अब डिलीशन जो है ये टर्मिनल भी हो सकता है, डिलीशन जो है ये टर्मिनल भी हो सकता है और इंटरकलरी भी हो सकता है, टर्मिनल और इंटरकलरी भी हो सकता है। What this terminal deletion is? What this terminal deletion is? Terminal deletion is that type of deletion जब genetic material lost हो जाएगा from the end of the chromosome. When the loss of the genetic material takes place from the end of the chromosome, at the terminal end of the chromosome जब genetic material loss हो जाएगा उसको हम terminal deletion बोलते हैं। यहाँ पर genetic material जो है lost हो जाता है at the end of the chromosome. इंटरकलरी में जेनेटिक मटेरियल जो है लॉस्ट हो जाता है विथ इन द क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल लॉस्ट विथ इन द क्रोमोसोम, विथ इन द क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस टाइप, हमारे पास एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, वी हैव नॉर्मल क्रोमोसोम, A, B, C, D. We have A, B, C, D, E, F, G, H. हमारे पास एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। अब अगर इसमें
टर्मिनल डिलीशन हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल दिस टर्मिनल डिलीशन. क्रोमोसोम सेगमेंट जो है ए लॉस्ट हो जाएगा. सो है दिस इंडिकेट्स टर्मिनल डिलीशन. सो वी हैव बी सी डी ई एफ जी एच ई एफ जी एच. अब दिस इज टर्मिनल डिलीशन. टर्मिनल. देन वी हैव इंटरकलरी. इंटरकलरी में क्या होता है? वी हैव दिस इंटरकलरी वन. इंटरकलरी डिलीशन. वी हैव इंटरकलरी डिलीशन जहां पर फॉर एग्जांपल वी हैव here we have A, B and suppose this is C, A, B, C, D. Then we have E. Suppose F and G is lost. Then we have H here. So in this case, in terminal deletion, there is the chromosome, say segment A is lost at the end. This is terminal deletion. And in case of intercalary deletion, there is the loss of chromosome segment F and G. That means within the middle genetic material lost हुआ है, उसको हम intercalary meristem बोलते हैं. So इसमें यहाँ पर अगर this is A, B, C, D, E, F, G, H एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, तो अगर इसमें डिलीशन होगी तो फॉर एग्जांपल ए सेगमेंट जो है लॉस्ट हो जाएगा. वो हैव बी सी डी ई एफ जी एच. दैट मीन्स ये जो है क्रोमोसोम सेगमेंट ए वो लॉस्ट हुआ है, वो टर्मिनल एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम होता है, तो हम उसको टर्मिनल डिलीशन बोलेंगे. अगर अब इस केस में इंटरकलरी में हमने बोला कि विद इन द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल लॉस्ट हो जाता है. वी हैव ए बी सी डी ई एफ जी एच. तो अगर इसमें इंटरकलरी डिलीशन हो जाएगी, इंटरकलरी डिलीशन, तो सपोज इसमें एफ और एच जो है क्रोमोसोम सेगमेंट वो लॉस्ट हुए हैं और वो प्रेजेंट होते हैं इन द मिडल ऑफ द chromosome. So it will become, after intercalary deletion, it will become A, B, C, D, E, F और G lost हुए हैं. That means this one. So यहाँ पर this is यहाँ पर lost हुआ है. So this is intercalary टर्मिनल डिलीशन. जब क्रोमोसोम के एंड पर जेनेटिक मटेरियल लॉस्ट हो जाएगा उसको हम टर्मिनल डिलीशन बोलेंगे. और अगर क्रोमोसोम विद इन द क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल लॉस्ट हो जाएगा उसको हम इंटरकलरी डिलीशन बोलेंगे. अब वी हैव होमोजाइगस डेफिशिएंसी एंड हेटेरोजाइगस डेफिशिएंसी. अगर फॉर एग्जांपल in case of homozygous deficiency, in case of homozygous deficiency, one chromosome of the homologous pair that is normal और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो deficient हो जाता है. That means we know that chromosomes are present in pairs. अगर एक क्रोमोसोम में of the homologous pair एक मेंबर में अब डिफिशिएंसी होगी और दूसरा जो है वो नॉर्मल होगा, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस डेफिशिएंसी. सो हेटेरोजाइगस डेफिशिएंसी में क्या है? हेटेरोजाइगस डेफिशिएंसी. हेटेरोजाइगस डेफिशिएंसी जो है इसमें वन
क्रोमोसोम नॉर्मल होता है एंड अनदर क्रोमोसोम जो है वो होता है डेफिशिएंट. दैट मीन्स इट वुड बी लाइक दिस heterozygous deficiency. For example, this is normal chromosome, this is deficient chromosome. लेकिन ये दोनों जो है they are homologous chromosomes. This is homologous chromosomes. In case of heterozygous deficiency, एक क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल होता है, दूसरा क्रोमोसोम जो है वो डिफिशिएंट होता है. और इन केस ऑफ होमोजाइगस डेफिशिएंसी, होमोजाइगस डेफिशिएंसी, इन केस ऑफ होमोजाइगस डेफिशिएंसी बोथ मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम दे आर अफेक्टेड. इसमें दोनों मेंबर्स अफेक्ट होते हैं. दिस ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, दिस आर होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड बोथ मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, both members of homologous pair are deficient, they are affected and they are deficient, they have lost the genetic material. इसको और ये जो homozygous deficiency वाले, जब when a person is suffering from this homozygous deficiency, when a person इसमें homozygous deficient chromosomes होंगे तो it does not reach to an adult stage और ultimately इसकी death हो जाती है. death क्योंकि होमोजाइगस डेफिशिएंसी में एक कंप्लीट सेट ऑफ जीन जो है लॉस्ट हुआ है. सपोज यहाँ पर अगर एक सेट इसमें प्रेजेंट होता है, एक सेट इसमें प्रेजेंट होता है इन हेटेरोजाइगस डेफिशिएंसी, तो वो जीन्स, वो प्रोटीन्स तैयार कर सकते हैं. they can take part in the phenotypic expression. लेकिन इन केस ऑफ होमोजाइगस डेफिशिएंसी इसमें एक कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स लॉस्ट हुआ है. दोनों मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस पेयर है क्रोमोसोम, उनमें डेफिशिएंसी हुई है. दैट मीन्स इसमें कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स लॉस्ट हुए. तो अल्टीमेटली जो इंडिविजुअल होगा जिसमें ये कंडीशन होगी, होमोजाइगस डेफिशिएंट क्रोमोसोम्स होंगे, तो ही अल्टीमेटली डाइज, ही डज नॉट रीच टू एन एडल्ट स्टेज एंड अल्टीमेटली डाइज बिकॉज ऑफ द लॉस्ट ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स. अब एक सिंड्रोम है दैट इज कॉल्ड एज क्राई-डू-चैट सिंड्रोम. क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, ये जो क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, इसमें जो इंडिविजुअल एक साउंड निकालता है दैट वाज रिजेंबल्स विद द कैट, इसको हम क्राई-डू-चैट सिंड्रोम बोलते हैं. तो ये कैसे होता है? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 5th इज डिलीटेड. इसमें पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम 5th जो है उसका एक पार्ट डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम पैदा हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज क्राई-डू-चैट सिंड्रोम एंड दिस क्राई-डू-चैट सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द डिलीशन, बाय द डेफिशिएंसी ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 5th in case of humans. Now we have another, this was regarding the deletion or deficiency. I told you that डिलीशन और डेफिशिएंसी, इसमें लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है फ्रॉम द क्रोमोसोम. अब डिलीशन जो है दो टाइप्स के हो सकते हैं. वन इज टर्मिनल डिलीशन, इंटरकलरी डिलीशन. जब जेनेटिक मटेरियल जो है लॉस्ट हो जाएगा एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, उसको हम टर्मिनल डिलीशन बोलते हैं. अगर जेनेटिक मटेरियल लॉस्ट हो जाएगा विद इन द क्रोमोसोम तो हम उसको इंटरकलरी डिलीशन बोलते हैं. तो यहाँ पर क्रोमोसोम सेगमेंट ए लॉस्ट हुआ है, इसको हम टर्मिनल डिलीशन बोलेंगे. यहाँ पर क्रोमोसोम सेगमेंट एफ एंड जी लॉस्ट हुआ है, एफ एंड जी लॉस्ट हुआ, इसको हम इंटरकलरी डिलीशन बोलते हैं. दूसरी बात है कि अगर दोनों जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे उनमें डेफिशिएंसी हुई है, डिलीशन हुई है, तो हम उसको होमोजाइगस डेफिशिएंसी बोलेंगे. तो इसमें बोथ द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस पेयर अफेक्ट होते हैं, वो डिफिशिएंट होते हैं. तो जो इंडिविजुअल होता है डज नॉट रीच टू एन एडल्ट स्टेज, उसकी डेथ हो जाती है अर्लियर ड्यू टू द लॉस ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसमें लॉस्ट होता है. और हेटेरोजाइगस डेफिशिएंसी में एक क्रोमोसोम नॉर्मल होता है, दूसरा क्रोमोसोम अफेक्टेड डेफिशिएंट होता है. तो
इसमें संभावना होती है कि इंडिविजुअल जो है सर्वाइव करता है। लेकिन इन केस ऑफ होमोजाइगस डिफिशिएंसी में बोथ मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस पेयर वो अफेक्ट होते हैं, उनमें डिलीशन हुई होती है, तो जो अल्टीमेटली इंडिविजुअल उसकी डेथ होती है। एक सिंड्रोम है क्राइडू-चैट सिंड्रोम, उसमें इट इज कॉज्ड बाय द डिलीशन ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 5। इसमें क्रोमोसोम 5 में डिलीशन हुई है और उसकी वजह से ह्यूमन्स में एक सिंड्रोम पैदा होता है जिसको हम क्राइडू-चैट सिंड्रोम बोलते हैं। दिस वाज रिगार्डिंग द डिलीशन। देन वी हैव अनदर टाइप दैट इज कॉल्ड एज we have deletion, then we have inversion. Inversion जो है, this type of it is a type of chromosomal aberration in which the chromosome segment gets inverted by 180 degree. So we have inversion. Inversion ये वो it is a type of ये वो chromosomal aberration है जिसमें chromosome segment जो है वो invert हो जाता है by means of 180 degree. So in case of inversion it is a type of chromosomal aberration where chromosome segment gets inverted by 180 degree. For example, we have A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H. अगर इसमें inversion हो जाएगी, तो suppose ये segment इसमें inversion हो जाएगी this, तो it will become A, B, C, D. अब G यहां पर आएगा, G यहां पर F, E, H, तो यहां पर इन्वर्शन हुई है। दैट मीन्स जो क्रोमोसोम सेगमेंट जो है वो इन्वर्ट हुआ है, दिस वन। नाउ ये इन्वर्शन जो है दो टाइप्स के हो सकते हैं। सो वो है क्रोमोसोम सेगमेंट जो है इन्वर्ट हुआ है बाय मीन्स ऑफ 180, तो इस तरह ये आया है। यहाँ पर EFG था, अब यहाँ पर GEF-GFE है। सो इसमें दो टाइप्स की है, एक है पैरासेंट्रिक इन्वर्शन, पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक। अगर if the inverted chromosome segment takes place beyond the centromere, that means इसमें centromere involve नहीं होगा, तो that is called as paracentric inversion. Inversion occurring beyond the centromere, that means इसमें centromere involve नहीं होता है। whereas pericentric inversion it includes, इसमें इन्वर्टेड सेगमेंट जो है वो इन्वॉल्व करता है किसको, इट इंक्लूड्स सेंट्रोमियर। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस क्रोमोसोम सेगमेंट, A, B, C, D, E, F, G, H. We have A, B, C, D, E, F, G, H. ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। अब इसमें आप मानो पैरासेंट्रिक इन्वर्शन हुआ, पैरासेंट्रिक, तो पैरासेंट्रिक में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इसमें ये F और G में इन्वर्शन हुआ है, सो वी विल हैव लाइक दिस। We have A, B, C, D, E और G and F, this is H, तो ये यहाँ पर इन्वर्शन हुआ है। That means
यहां पर इन्वर्शन हुआ है F और G इस साइड से आ गया और F जो है इस साइड से आ गया, दैट मीन्स यू हैव दिस सेगमेंट हैज इन्वर्टेड, और इसने सेंट्रोमियर इंक्लूड नहीं किया, दैट मीन्स इन्वर्टेड सेगमेंट, क्रोमोसोम सेगमेंट डज नॉट इंक्लूड द सेंट्रोमियर, इसको हम पैरासेंट्रिक इन्वर्शन बोलेंगे। अगर ये सेंट्रोमियर जो है वो अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो जाएगा देन इट इज कॉल्ड एज, if a centromere will get involved that is called as pericentric inversion, that means ऐसे अगर कंडीशन होगी। we have A B C D, अगर फॉर एग्जांपल ये सेगमेंट इन्वर्ट हो जाएगा, we have D E and G, तो फिर G यहां पर आएगा, this G E and D, so यहां पर so we have E F G H, so यहां पर सेगमेंट फॉर एग्जांपल अगर ये सेगमेंट अब इन्वर्ट हो जाएगा D E and F, so F यहां पर आएगा, we have F यहां पर आएगा, then E यहां पर आएगा और D यहां पर आएगा, so G और H, that means ये सेगमेंट्स, so इसको हम पेरिसेंट्रिक बोलते हैं, पेरिसेंट्रिक इन्वर्शन बोलते हैं। दैट मीन्स अगर इन्वर्शन जो है उसने इन्वर्टेड सेगमेंट ने सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हुआ तो इसको हम पेरिसेंट्रिक इन्वर्शन बोलेंगे। अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हुआ इन्वर्टेड सेगमेंट में, उसको हम पैरासेंट्रिक इन्वर्शन बोलते हैं। यहाँ पर जो इन्वर्टेड सेगमेंट जो है फॉर एग्जांपल ये जैसे नॉर्मल क्रोमोसोम है, अगर इसमें इन्वर्शन हो जाएगी पेरिसेंट्रिक, दैट मीन्स ये D E और F ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो F जो है यहाँ पर आएगा, E यहाँ पर आएगा और D यहाँ पर आएगा, और इसने इंक्लूड किया सेंट्रोमियर, उसको हम पेरिसेंट्रिक इन्वर्शन बोलते हैं। सो इन्वर्शन जो है ये वो क्रोमोसोम एब्रेशन है जहाँ पर क्रोमोसोम सेगमेंट इन्वर्ट होता है बाय 180 डिग्री। तो फॉर एग्जांपल ये कंडीशन है, अगर ये सेगमेंट इन्वर्ट हो जाएगा तो G यहाँ पर आएगा, F यहाँ पर आएगा और H यहाँ पर आएगा। अब पैरासेंट्रिक इन्वर्शन जब जो इन्वर्टेड क्रोमोसोम सेगमेंट डज नॉट इंक्लूड द सेंट्रोमियर, उसको हम पैरासेंट्रिक इन्वर्शन बोलेंगे। पैरासेंट्रिक यहाँ पर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसको हम पैरासेंट्रिक इन्वर्शन बोलेंगे। और अगर इन्वर्टेड सेगमेंट में सेंट्रोमियर इंक्लूड हुआ तो हम इसको पेरिसेंट्रिक इन्वर्शन बोलेंगे। पेरिसेंट्रिक फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख लीजिए D E और F ये सेगमेंट इन्वर्ट हो गया, तो दैट मीन्स F यहाँ पर आएगा, E यहाँ पर आएगा और D यहाँ पर आएगा, उसको हम पेरिसेंट्रिक इन्वर्शन बोलेंगे। पैरा मीन्स बियॉन्ड द सेंट्रोमियर, बियॉन्ड द सेंट्रोमियर, दैट मीन्स सेंट्रोमियर नॉट इंक्लूडेड, centromere not included in the inverted segment. Or peri means it includes the pericentric, means it includes the inverted chromosome segment, includes the centromere. This was regarding the regarding the deletion and inversion. In the next lecture we will talk about the duplication and translocation. Thanks.